लगाते नीचे लगाते कुछ लगा रहे वो नीचे लगा रहे वेरी नाइस। दिस इज पपाया। व्हाट इज दिस? इससे करो मैं मिट्टी अभी जी ये क्या है? ये मिट्टी डालो। हाँ डालो दिस इज फोटोशूट। इसका कैंडिड एक्सप्रेशन देखो उसके चेहरे का। ये डेंगू में काम आएगा। पपाया अभी जी पपाया हमारा यू पुटिंग पपाया पपाया तो ये कब तक बड़ा होगा? एक्चुअली 2 साल में बड़ा होगा। Welcome to the Nature Walk. This project is to educate the kids regarding the benefits of trees and importance of creating healthier environment for children. This is initiated by CFN President Ullas Karle, Vice President Sachin Temkar, with the help of nature lover, nursery owner and horticulturist Vishal Shinde. It was really effective interaction between parents, kids and plants. जब बच्चे खुद पेड़ लगाते हैं तो वे नेचर के और पास जाते हैं. Now since they have become the owner of the plants, they have certain responsibilities to maintain the plants, right? So this is a far-sighted trip which will benefit the children in future age. And we should appreciate the efforts of the parents to inspire the children and take them close to the nature. Good morning everybody. It's a rainy morning and we are upbeat in Lodha Luxuria. We care for nature, always care for nature, as well as we want to create awareness and conserve the nature in the hearts of the people. From that point of view, we have taken around nature trail in and around this complex, and children to young people to even senior people, they have joined this trail and they are really enjoying. Sachin Temkar, who is our captain of the team, he is explaining all the people about the flora and fauna in this complex. Thank you all. Hello, today I went to a nature trail with my family. Over here is Gulmohar trees. Okay, where is Gulmohar tree? Over there. It's a foreign tree. Okay. Then this is also a tree, and this is used for medical things. Okay. How did you feel? I felt very nice when I came here, and it's also raining right now. Acha, so you are enjoying? Yes. Okay. Nicely maintained. Our horticulture team has purposely planted a lot of native plants to get butterflies. Nuts, ये betel nut. So recently I lost my mother-in-law, and after the funeral was done, we usually asthiyan, what we call in Hindi, we just immerse them in the water or the river. So like my husband came with a concept that instead of doing that, let's do something for the nature, and we plant few trees in her memory with the ashes mixed in the soil. So with the help of Karle uncle and the gardeners in Lodha Luxuria, we were able to plant 5 trees: Rudraksh, Neem, Guava, Banyan and Peepal. So I'm very grateful to all the supportive team and the family members of Lodha Luxuria. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you so much. ट्री इंडिजिनस ट्री, और ऐसा है कि गर्मी में भी ये आता है, चाहे कितना भी गर्मी होने दे तो भी हीट टॉलरेंट है. सो इट कैन ग्रो वेल इन हॉट सीजन या हीट सीजन में, इट कैन ग्रो वेरी वेल. मोरिंगा इज वेरी कॉमनली, इसके जो ड्रमस्टिक जो आती है खाते हैं सब लोग, सेंग जो होते हैं उसके सांबर में डालते हैं, सब चीज़ में डालते हैं, इसकी सब्जी होती है. एंड इट इज़ नोन एज न्यूट्राइएंट डायनामाइट. एक तो इसके पत्ते में से भी बहुत सारा चीज़ मिलता है, और उसके जो फल है उसके फ्लावर्स में भी मिलते हैं. ऐसा ट्री है, ये ट्री को कट करो और लगा दो, कटवे ट्री है. ओह वाओ, सनबर्ड दिख रहा है, ब्यूटीफुल पर्पल रम सनबर्ड. Like to hear your experiences and your contribution towards the planting and towards the what we are doing the projects against the global warming. Hello, we are quite fortunate to be in Lodha Luxuria because we have abundant greenery around,
and we see to it that we maintain this greenery. So recently our society came with this drive to plant all the indigenous trees around, including fruit trees, so that we'll not just focus on the beauty of our society, but also welcome more birds and butterflies. And so we have started planting these trees around our society, and I'm very happy where we are, because we see to get to see, because basically I'm from Nasik, Devlali. I've grown up seeing greenery, flora and fauna around. So I'm happy the way it is here now, and that's it. Thank you. Hello, good morning. My name is Surabhi Das, and as you see, come. They're all. We are all part of a group. We call ourselves the Storytellers Team Go Green. So what we do here is we do a lot of activities with children, and we meet regularly to teach them about nature and to get them involved in this process. So like this today, what we have organized here, we've called Mr. Sachin Temkar from the Care for Nature Foundation, and he is here telling the children about the plants which are growing already in our society and the birds which come to these plants. So the children are very excited to learn about this, and we want them to take ownership of maintaining this in the future. So that is why we have organized this together today. And thank you so much for coming. Thank you. This nursery is maintained by horticulturist Vishal Shinde. Commendable work. A very Indian variety. देख रहे हो कैसे स्टर्डी है और कितना घना है. You can see इतना अभी तो धूप नहीं है, लेकिन धूप होती है और इसके नीचे खड़े रहेंगे तो आपको एकदम शैडो मिलेगा. तो इट इज क्वींस फ्लावर ट्री. ये तामन है, तामन भी बोलते हैं इसको, जारुल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्वींस फ्लावर बोलते हैं. उसके जो फ्लावर है दैट्स अ स्टेट फ्लावर ऑफ महाराष्ट्र. अगेन है इंडियन वैरायटी. उसके अभी सीड्स निकल के आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको सीड्स आ रहे हैं. उसको अभी फ्लावर, एक पर्पल फ्लावर है उसके ऊपर, एक हाथ दो जगह पे मैंने देखा था. बारिश आते वी कैन सी दैम. लुक एट द बार्क. जो बार्क है एकदम स्ट्रॉन्ग है. What's your name? My name is Sujay Das. And how did you feel after hearing the information from Sachin sir? I was very happy learning about so many new birds and trees. Today we found out that Gulmohar is not an Indian tree, but it's a foreign tree which has come from different places. And I really liked the nature trail that we had today. We saw so many birds. What other information you got? We got information that people is a very fast grower and it has the strongest roots. And this tree right behind us, that is right behind us, it's called the Queen flower tree. It gives purple flowers and it also has one of the strongest barks, as you can see here. So I really enjoyed this session. Thank you. Hello sir, we would like to hear your experience and contribution towards the nature. Can you please give me a bite? Since you are the senior member and fond of nature. I've always been in love with nature. In fact, I grew up in a small town in West Bengal. We had trees in our house. We lived in a bungalow. We used to climb up guava trees, mango trees. We used to have a lot of fun. And once we moved to the big city, it was only cement. So it's a sort of going back to the roots. I think you're never too old to learn. It's quite fascinating to find out facts about both birds and trees which you didn't know about. I mean, I'm always interested in general knowledge. I know a lot about these trees, but you always keep finding out new facts, fascinating facts. And it sets up more questions in your brain, like, why is a Brahmani kite called a Brahmani kite? That kind of question. So I'll go and look it up. It is fascinating. For me, it's been a thrill. Okay? Yeah. Thank you. I can start. Hello.
मी केअर फॉर नेचरचे खूप खूप आभार मानते की त्यांनी येऊन अतिशय सुंदर पद्धतीने झाड, फुलं, इथली फुलपाखरं, पक्षी ह्यांची माहिती दिली. तुम्ही बघतच असाल आता सध्या ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे भरपूर पृथ्वीचं नुकसान झालेलं आहे. या मागच्या मे महिन्यात तर आपल्याला जगणं असह्य होत होतं, कारण की बऱ्याच प्रमाणात गरम होत होतं, उष्णता भरपूर प्रमाणात वाढलेली होती. तर मला असं वाटतं की कुठे ना कुठेतरी ॲज अ नागरिक म्हणून, ॲज अ जागरूक नागरिक म्हणून आपण सर्वांनी पर्यावरणाचा संवर्धन केलं पाहिजे आणि बऱ्यापैकी असे कार्यक्रम अजून झाले पाहिजेत, सो दॅट मुलांना, आमच्यासारख्या लोकांना ह्याची माहिती होईल. अगेन मी कारले काका केअर फॉर नेचरचे जे आहेत, जे बोलत आहेत, सचिन टेमकर, त्यांचे मी खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद. कड़ी पत्ता कहाँ यूज करते हैं? खाने में खाते हैं ना, अपन पोहा डलता है, बनता है उसमें, खाते, नमकीन में डालते हैं. गुड मॉर्निंग. मी हिराकांत भोईर, लोढा लक्झरियामध्ये लोढा लक्झरियामधला रहिवासी आहे. आज केअर फॉर नेशन यांच्यातर्फे जो सेशन घेण्यात आला तो फार वाखाणण्याजोगा होता. पहिलं म्हणजे मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना नेचरबद्दल जे ज्ञान दिलं त्यांनी, आणि त्यांचा जो भर होता तो जास्त करून जे आपले रिअली प्लांट आहेत, ते नॅशनल प्लांट जे ह्या जमिनीमध्ये उगवलेले होते, काही कारणास्तव बिल्डरनी ते तोडून वगैरे आता ते प्रोजेक्ट बनवला. आणि तो प्रोजेक्ट जो केला आहे तो ज्यांनी कोणी डिझाईन केला त्यांनी ती फॉरेन कल्चरसारखं इथे आणून झाडं लावली. त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. दिसायला सुशोभीकरण, शोभेची झाडं आहेत, पण मी बघतोय एवढं म्हणजे 10 वर्ष मी झाली इथे राहतोय, पण त्या झाडांवर मला कधी पक्षी बसताना पण दिसले नाहीत. पण जेवढे पक्षी चाफ्यावर म्हणा, जांभूळ किंवा आंब्यावर, म्हणजे वडावर दिसतात, ते प्रकार मला तिथे दिसले नाही. आणि त्यांचं मला खरंच ते म्हणणं पटलं आणि आता मला पण तसं वाटायला लागलं. आणि आम्ही आता ॲक्च्युली यामार्फत समाजाला आणि सरकारला पण सांगू इच्छितो, जो कुठला प्रोजेक्ट असेल त्याच्या ज्या नेचर ट्री आहेत, नॅचरल ट्री आहेत, त्या आता तिकडे पहिला तुम्ही त्या हिशोबाने अनुषंगाने त्या बिल्ड केल्या, चांगल्या ग्रो केल्यात, तर हे नेचरचं बॅलन्स होऊ शकते. तर मी परत एकदा या नेचर फॉर केअरच्या संघटनेला धन्यवाद देतो की त्यांनी असे उपक्रम वेळोवेळी केलेत आणि राबवलेत. त्याबद्दल जे काही श्रम त्यांना घेतलेत ते खरंच वाखाणण्याजोगे आहे. आणि याच्या पुढेही त्यांचा जो कुठलाही उपक्रम असेल त्यात माझा नेहमी 100% सहभाग असेल. धन्यवाद. क्या आ रहा है कि टीएमसी कुछ फ्री झाड़ देते हैं हमको, और हम जो मिलते हैं वो झाड़ लगा देते हैं कोई भी इकोसिस्टम में. सो बेसिक थोड़ा स्टडी हम लोगों ने करना चाहिए कि जो हम नेचर में रहते हैं तो उसका इकोसिस्टम के पेड़ कौन से है. राजस्थान के पेड़ में महाराष्ट्र में नहीं लगा सकता, दुबई के पेड़, पाम ट्रीज हम लोग ट्रॉपिकल मुंबई में नहीं लगा सकते. सो दैट बेसिक स्टडी वी शुड डू कि वो इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट बहुत पूरा अर्थ में, अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम चलेगी नहीं. सो ट्री इज़ द बेसिक, नेचर से स्टार्ट होता है. ट्री नहीं रहेगा तो ये बाकी इकोसिस्टम रहेगी नहीं. सो हम लोग एक चैलेंज, मैं तो खुद BSc इंजीनियर आउट ऑफ पैशन में हॉर्टिकल्चर लाइन में आया हूँ बिकॉज स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट करते करते. बट हम लोग अगर शो के लिए हमको प्रेशर रहता है कि एस्थेटिक वैल्यू, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट्स, दैट इज़ ओके, बट हम लोग कौन से इकोसिस्टम का प्लांट किधर लगा रहे हैं. बिल्डर्स जो भी हमको, आज हम कोई भी प्रोजेक्ट में जाए तो आपको बहुत सारे पाम ट्रीज, डेट पाम्स, यही सब दिखने वाले हैं. सो ये अपने सुंदर होंगे. हाँ, बट दिखने में सुंदर हमने ये बनाया प्रोपोगंडा, क्या दिखने में सुंदर बाकी पेड़ नहीं है क्या. बट सिंगापुर का आर्किटेक्ट आके मुंबई में डिजाइनिंग करेगा. तो हमारे फील्ड में ये सब चैलेंज बहुत है कि हम लोग ने इधर ये जो फॉर एग्जांपल ये 30 एकड़ का लैंड था, तो यहाँ पे नेटिव ट्रीज कौन थे. सी, ह्यूमन को प्लांटेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी. कोई जरूरत ही नहीं. ह्यूमन प्लांट, अर्थ में पहले पूरे प्लांट ही थे, ह्यूमन ने निकाले, इसलिए उसको भी प्लांटेशन कर रहा है और कर रहा है गलत. सो इकोसिस्टम वापस और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है. सो हम लोग ने थोड़ा स्टडी आया तो कि हर एक को नहीं बोल सकता कि मैं मेरा पैशन है हॉर्टिकल्चर या एनवायरनमेंट, बट एक बेसिक स्टडी तो हमने करना चाहिए कि हम अर्थ पे जो जीते हैं उसका थोड़ा तो इकोसिस्टम या पेड़ या पौधे, हमको बेसिक स्टडी करना चाहिए. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे सेशन करेंगे ना तो हम लोग थोड़ा स्टडी करना चाहिए हमारे कि ये इकोसिस्टम के पेड़ कौन से हैं. बर्ड्स हमने लिखा है बट हम लोग बोले स्पैरो कम हो रहे ड्यू टू मोबाइल नहीं बताओ हमारा नेटवर्क. ड्यू टू मोबाइल नेटवर्क वन ऑफ द रीजन नहीं है. कोलशेत खाड़ी पे बहुत सारे रीड्स थे, छोटे छोटे जो डेंस रीड रहते हैं वही नहीं रहे तो स्पैरो कहाँ नेस्टिंग करेगी. खाना ग्रेन्स खाते हैं. हम लोग सिर्फ बोलते हैं आम लगाओ, ये लगाओ, 2-4-10 पेड़ हमको मालूम है, बट बेसिकली इकोसिस्टम में कौन से पेड़, नेचुरल हैबिटेट. 1 एकड़ जमीन छोड़ दीजिए 10 साल, वहाँ पे जंगल आएगा, बराबर नेचर अपना अपना प्लांटेशन करेगा.
ह्यूमन ने पूरे जंगल निकाले इसलिए उसको प्लांटेशन करना पड़ रहा है। ये प्लॉट में जो नेचुरली 50 साल 100 साल पहले कौन से पेड़ थे, वो अगर टीएमसी या कोई भी गवर्नमेंट स्टडी करेगा, मैंने तो उनको बोला भी था कि आप कोई भी प्लॉट डेवलप करते हो तो वहाँ के नेटिव ट्रीज कौन से उतने वापस लगाओ। कौन सा ट्री लगाया? आराम से डर जाएंगे। Due to this successful nature trail and practical training given to children for planting the saplings, we can hope better future for them. The kids are really inspired and enjoyed this trip. इधर तो रखो तो आगे, पहले प्लांट तो करो। उठाओ। वेरी गुड जॉब। चलो जल्दी आराम से। I do this side and you do that. I'm going to the next tree. I hope you all like the sincere efforts done by elders for the kids to take them close to nature. Please watch the other videos of CFN. I am putting the link of playlist in description box. Like, share and do comment. We will soon meet in the next video.